Hello, good morning students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. We were looking about one of the grammar topic and which is very important in your class, not only for 9th but also for 10th. Now in that grammar topic, it was titled Direct and Indirect Narration. In that lecture, we have also learned about the concept what is called direct speech and what is called indirect speech. Apart from that, we have also learned certain rules and regulations, the kinds of sentences where we need to change, how or what will be the changes we need to make while converting a direct narration into indirect narration. In that procession, let's move ahead. Now, yesterday we were discussing about there were three major changes to convert direct narration into indirect. यहाँ पे we have to look, हमें ध्यान देना पड़ेगा dear student कि I am just quickly revising, just focused, right? See, a person who are having there are two persons who are having a conversation, it is called direct speech, and the conversation is listened by someone else and being presented to other, then it will converted into indirect, right? Now to convert this direct conversation into indirect, we need to do certain changes. Those changes only you can understand when you can understand the कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है लिसनर. इन बिटवीन दिस टू स्पीकर एंड लिसनर वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब. नंबर 2, द कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास which will connect which will take the place of connector, right? Yeah, in which we can put the connector in place of those commas and inverted commas. Now the whole statement which is given into double inverted comma are known as reporting speech. In that case, we have discussed about two major part of the changes. एक होता है reporting verb के अंदर changes that we have learned in part 1, and the secondary change occurred in a connector. जहां पे दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है वो है कनेक्टिंग प्लेस. कनेक्टर के बारे में हमने यस्टरडे यानी हमारा जो भी पार्ट 1 था उसके अंदर हमने वो लर्न कर लिया है. नाउ वी हैव आल्सो लर्न अबाउट वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन विच वी नीड टू मेक अ सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू आरएस. नाउ द थर्ड वन इज दैट तीसरा हमारा चेंजेस था, चेंजेस अकर इन आरएस. Sir, you have a question, my dear student. If in your mind, okay, what does it mean by R.S. R.S. का मीनिंग होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी जाती है. There are three major changes in RS. हम RS के अंदर there are three main changes we need to do at the time of converting direct paragraph into indirect or direct narration into indirect, right? तो what are those changes? वो changes कौन से हैं dear student? देखो आप, time word and place word, ये पहला चेंज है. रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते समय आप टाइमिंग वर्ड्स एंड प्लेस वर्ड को आपको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेकेंडरी है प्रोनाउन के अंदर जो चेंजेस आएंगे, जो वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो प्रोनाउन जहां पे होंगे उनमें कौन से चेंज आएंगे. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेंसेस. ये जो तीसरा वाला और बहुत मूल्यवान जो कि चेंज होने वाला है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, वो है टेंसेस के अंदर कौन से चेंज होंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट चेंजेस. टाइम वर्ड एंड प्लेस वर्ड के अंदर कौन कौन से चेंज होने वाले हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सी, I have already prepared a table that you have to also write down in your notebook as well. Okay, dear student, आपको ये याद भी करना पड़ेगा. You have to remember this one. Until and unless you are not supposed to revise this or remember this, you will not give your 100% in converting that direct narration into a indirect one. Say, understand it first. डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको मतलब जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा का स्टेटमेंट होगा
उसके अंदर मान लो कि आपको इनमें से कोई वर्ड दिया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग दैट word into indirect, what will come, that I have mentioned word here, just focus it. If you are given now in a direct speech, अगर इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं नाम दिख जाता है, यहाँ पे जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, देखो यहाँ पे फोकस इट, यहाँ पे नाम है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये वाला हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा। तो इसमें अगर नाम दिया है तो आपको उसका क्या करना है, देन करना पड़ेगा या फिर एट दैट टाइम करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। यू कैन यूज आइदर देन और एट दैट टाइम। नाउ इफ यू आर गिवन टुडे इन अ डायरेक्ट स्पीच, इन अ इन्वर्टेड कॉमा वाली जो भी फॉर्मेशन होगी उसमें अगर आपको टुडे दिया है तो आपको यस्टरडे या फिर दैट डे लिखना पड़ेगा, राइट। फिर अगर टुनाइट दिया है तो दैट नाइट या लास्ट नाइट आप यूज कर सकते हो। टुमारो दिया हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो इनडायरेक्ट के अंदर द नेक्स्ट डे या तो फॉलोइंग डे आप लिख सकते हो, या फिर यस्टरडे दिया हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर, यस्टरडे दिया हो तो आप द प्रीवियस डे यहाँ पे लगा सकते हो, देखो द प्रीवियस डे यू कैन राइट, राइट। मान लो कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर लास्ट नाइट लिखा है तो द प्रीवियस नाइट आएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर मान लो कि दिस वीक है तो आपको दैट वीक या फिर लास्ट वीक आप लगा सकते हो। नेक्स्ट ईयर हो तो फिर द फॉलोइंग ईयर आप लगाओगे, एगो हो तो बिफोर लगाओगे, दिस हो तो दैट करोगे, हियर हो तो देयर करोगे। समझ में आ गया? अब ये जो चीजें है डियर स्टूडेंट कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में इनमें से अगर कोई वर्ड दिया गया हो तो ठीक इसके सामने मैंने जो चेंजेस लिखे वो वर्ड आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे। ओनली देन एंड देन यू विल बी मेटिंग द फर्स्ट रूल ऑफ द कन्वर्जेशन। यहाँ पे आरएस की कन्वर्जेशन का जो ये जो पहला पॉइंट है ना वो आप उसको मैच कर पाओगे। नाउ यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि रिवर्स चेंज इज नेवर अकर। अगर ये दिया है तो फिर इसमें होगा सर? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इतना याद करना है कि अगर ये दिया है तो ही आपको इसमें जाना है। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई दिया है तो यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज। आपको वहां पे बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जो भी वर्ड है वो वहां पे लिख दो आप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी चेंज दैट इज प्रोनाउन। सर प्रोनाउन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? एज यू नो माय डियर स्टूडेंट दैट व्हाट आर द प्रोनाउन? प्रोनाउन व्हिच रिप्लेस द नाउन। नाउन को जो रिप्लेस करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो देयर आर majorly three kinds of pronoun that we have already learned in lower level. Now see, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सकते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर प्लूरल, जिसको मैं आई और वी बोलता हूं। वी इज माई प्लूरल, आई इज माई सिंगुलर, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। मान लो कि आपका इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं उसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए गए। सर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई सिंगुलर के लिए और वी होता है प्लूरल के लिए। वी प्लूरल के लिए होता है और आई सिंगुलर के लिए होता है। तो उसके अंदर आपका जो स्पीकर होगा ना डायरेक्ट स्पीच का, डियर स्टूडेंट, द स्पीकर ऑफ अवर डायरेक्ट स्पीच, इन अकॉर्डिंग टू हिम और हर यू हैव टू चेंज इन फर्स्ट पर्सन। अगर पहले पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन का आपको कोई प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में दिया जाता है तो उस प्रोनाउन के अंदर आप चेंज जो हमारा स्टेटमेंट का स्पीकर होगा उसके हिसाब से आप चेंज करोगे। नाउ सेकंड रूल इज इफ देयर इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप तो जानते ही हो क्या होता है? यस, यू, राइट। सिंगुलर और प्लूरल में एक ही यूज होता है। तो यहां पे अगर आपकी इन्वर्टेड कॉमा वाली फॉर्मेशन के अंदर आपको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हैं तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का हमारा जो भी लिसनर होगा उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। और मान लो यहाँ पे ये मैंने देखा ना, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लिसनर ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच यू हैव टू चेंज इट। लिसनर सेकंड पर्सन का। अब जो थर्ड पर्सन की बात आती है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर मान लो कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन का सब कोई प्रोनाउन आता है तो क्या करना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक तो हो गया ही, दूसरा हो गया शी और तीसरा हो गया इट। ये हो गया आपका सिंगुलर का। और प्लूरल के अंदर क्या आता है, दे। ठीक है ना, तो इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन नैरेटेड एज अ थर्ड पर्सन, वो पहले से ही थर्ड पर्सन पे नैरेट हुआ है। यहाँ पे तो वही हो रहा है। अब देखो जरा, जब दो बंदे बात कर रहे हैं, तीसरा सुनता है, तो तीसरा जब आगे वाले को बताएगा तो ये थर्ड पर्सन ही होगा ना, थर्ड पर्सन नरेशन होगा। तो इसमें यू आर नॉट अलाउड टू चेंज, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज टेंसेस। टेंसेस में क्या क्या चेंज होंगे डियर स्टूडेंट, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़े एब्रिविएशन टाइप लिखे, शॉर्ट फॉर्म लिखे। लेटर ऑन आई विल लेट यू नो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट इट प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। सो डियर जस्ट फोकस ऑन इट, इस पे आप जरा सा ध्यान देना। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर मान लो कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, ध्यान देना यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच करोगे, उसका इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तब वो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट के अंदर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट बनेगा। अगर परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, राइट। यहां पे याद रखो कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, आगे वाला अगर मान लो कि सिंपल पास्ट टेंस है, सर आपने ये तो पता है कि सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट करना है, लेकिन सिंपल पास्ट दिया हो तो क्या करना है, इफ यू आर गिवन सिंपल पास्ट टेंस इन अ रिपोर्टिंग स्पीच देन इट विल बी रिपोर्टेड एज पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको आप परफेक्ट पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो ना। परफेक्ट जो आपका परफेक्शन होगा ना यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, अब उसके बाद का क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो उसमें आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दो। क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दो। मतलब आपका ये भी कन्वर्टेशन कंप्लीट हो गया। सर आपने ये तो समझा दिया, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस वन, बट व्हाट अबाउट इफ वी आर गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस। सर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो भी कोई चेंज नहीं करना है, राइट। ये हमारे हो गए मेन जो टेंसेस है उसकी बात। अब मान लो कि फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, सिंपल फ्यूचर हो और आपको विल दिया हो तो आपको क्या करना है, वुड कर देना है। मान लो कि आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस जिसमें आप विल बी वाली जो फॉर्मेशन आती है, जैसे आई विल बी डूइंग दिस वन एट दिस टाइम टुमारो, राइट, आने वाले कल में इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँगा, अगर उसकी बात आती है तो विल बी, यहाँ पे विल बी की जगह पे आपको रखना है वुड बी कर देना है बस। यहाँ पे मान लो कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस दिया हो जिसमें विल हैव आता है, विल हैव आता है तो आपको वुड हैव कर देना है। ठीक है, अगर मान लो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है जिसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी लगता है तो इन दैट केस यू नीड टू पुट वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, बस दैट इज ऑल यू नीड टू चेंज। नाउ
इफ यू आर बीन आस्क्ड द सेंटेंस यूजिंग कैन, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर कैन दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। हैव टू दिया है तो हैड टू करना पड़ेगा। अब मस्ट और हैव टू दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए आप हैव टू ही यूज करोगे। मस्ट हो या फिर हैव टू हो, दोनों के लिए आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है। मे दिया हो तो आप माइट कर दो। तो ये हो गए आपके टेंसेस चेंज। आई होप कि आपको ये सारी एप्लीकेशंस याद है। If it is not, then by pausing it, just clarify yourself and write it in a proper way, right? Properly आप इसको लिखना जरूर। Now, सर ये तो सारे चेंजेस हमने पढ़ा दिए कि भाई सर पहले चेंजेस होते हैं आपके आरवी के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा है कनेक्टिंग प्लेस के अंदर चेंजेस, राइट? और आपने ये भी पढ़ाया कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस जो हमें करने होते हैं सर, लेकिन ऐसे भी क्या कोई स्टेटमेंट्स आएंगे जिसमें हमें चेंज नहीं करना है? यस डियर स्टूडेंट, ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट्स है जहां पे हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे अगर आपका आरवी, यहां पे ध्यान देना, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम स्पीकर और लिसनर के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा आरवी सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर का हो, राइट, जिसमें हमने लिखा हो हाँ देयर यू आर, विल से या ऐसा कुछ हो, तो वहां पे या से वगैरह लिखा हो तो वहां पे हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। वहां पे जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसी फॉर्म में बाकी जो कनेक्टर वगैरह के चेंजेस होते हैं वो करके आपको वैसा का वैसा लिख लेना है, ठीक है। उसमें और दूसरा कोई चेंज नहीं आएगा आपके आरएस के स्टेटमेंट के अंदर। और दूसरा, मान लो कि आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जिसको हमें रिपोर्टेड करना होता है, मतलब कन्वर्ट करना होता है, ऐसे स्टेटमेंट में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट वगैरह दर्शाई गई हो, शोज फैक्ट्स और ट्रूथ, अगर कोई फैक्ट्स या ट्रूथ बताया गया तो उसमें भी यू आर नॉट सपोज टू मेक चेंज, राइट? यू आर नॉट अलाउड टू डू चेंजेस, आप वहां पे भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अब आ गई है। आई होप यू हैव जस्ट ब्रश अप योर टेक्निकल नॉलेज अबाउट हाउ टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। नाउ लेट्स लर्न थ्रू द मीडियम ऑफ वन एग्जाम्पल। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन सभी रूल्स का वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। हमें अप्लाई भी करना है, देख लेते हैं चलो क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, आप उसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। सर यहाँ पे एस जो होगा वो आपका प्रेजेंट का होगा, यहाँ पे नाउ लिखा है तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इट इज आपको लेना है। यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। ये पहला स्टेटमेंट है जिसको हम बोलेंगे आरएस या रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है। वी आर कॉलिंग इट रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ सी, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। नंबर 1, एक्सक्लेम्ड द मैन। कोई एक बंदा है जो इसके जो भाव होते हैं ना, इमोशन होते हैं, वो इमोशन दर्शा रहा है। नाउ इट्स गेटिंग रियली बैड, ऐसे करके, जैसे वो नाखुश है, राइट, या फिर थोड़ा सा सैड है, निराश है, या इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो इस तरह से वो जेस्चराइज करता है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि इसका, अब याद करो वो वाला रूल जहां पे हमने एक्सक्लेम्ड वाला सीखा था कि भाई जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो कनेक्टर के तौर पे आपको एक्सक्लेम्ड लिखना है, एक्सक्लेम्ड लिखने के बाद विथ लिखना है, और जो भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसमें कौन सा, यस, कौन सी फीलिंग है वो ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे बैड यानी सैड फीलिंग है तो आपको थोड़ा सा सैडनेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सक्लेम्ड विथ सैड, वो ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
आप ये समझना जरा ध्यान से, विथ नहीं लिखोगे और डायरेक्ट सैडली लिख दोगे तभी भी चलेगा, लेकिन वो इमोशन पकड़नी पड़ेगी। यू नीड टू कैच दैट इमोशन ऑफ द स्टेटमेंट। See, I have converted for you the very first statement. Understand it very properly. See, ध्यान देना इसको। क्या हमने किया है कि the man exclaimed, ये मेरा स्पीकर है, देखो the man exclaimed the man, तो ये मेरा स्पीकर हुआ क्योंकि ये वाला बंदा है स्टेटमेंट बोल रहा है। तो हमने लिखा कि the man exclaimed, अब देखो मैंने बोला था ना कि ये इमोशन कौन सी है, सैड वाली, तो लिखा सैडली। द मैन एक्सलेम्ड सैडली, बहुत निराशा से वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दैट दिस इज माई कनेक्टर, ये मेरा कनेक्टर था। आप रूल बुक के अंदर आगे जाके पार्ट 1 में देख लो, आपने वहां पे एक्सलेम्ड वाली जहां पे फॉर्मेशन होगी वहां पे कनेक्टर का जो कॉलम होगा वहां पे आपने लिखा था दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दैट लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इट यानी ये थर्ड पर्सन है, ये प्रोनाउन है। मैंने बोला था आपको, अभी बोला, क्या बोला कि थर्ड पर्सन के जो आएंगे, यहां पे हमने पढ़ा था इफ देयर इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट स्पीच है ना इन्वर्टेड कॉमा वाली, तो ये डायरेक्ट है, उसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, if there is a third person pronoun used in a direct speech there should not be change, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमें it का it ही रखना है। we need to just carry this word as it is over here, जैसा था वैसा हमने लिख दिया, ठीक है सर, ये तो आपने कर दिया। yes we have understood. now sir what about was, आपने was कहां से लाया? as we have learned in this rule of tenses के रूल में हमने क्या पढ़ा था, if we are given a present continuous tense in the direct speech के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो तो it will be converted into a past continuous tense, वो past continuous tense के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखो it is really getting bad now था, तो हमने कर दिया it was really getting bad, यहां तक तो ठीक है सर। यहाँ पे नाउ लिखा है और आपने तो कैसे चेंज हुआ, अगेन माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू कम ओवर हियर, टाइम वर्ड एंड प्लेस वर्ड के अंदर चेंजेस में देख लो। सबसे पहला हमारे पास एक वर्ड आया था नाउ, जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर था, उसका या तो आप क्या कर सकते हो, देन कर सकते हो या फिर एट दैट टाइम कर सकते हो। हमने यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया है, सो आई हैव रिटन देन ओवर हियर। सर ये तो समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब पहले स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं हो सकती है। देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा किया गया है और बोला गया है आई होप इट पासेस क्विकली। अब यहाँ पे ना ही लिसनर दिया है ना ही और दूसरा कोई स्पीकर दिया है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच में अगर एक ही कंबाइंड स्पीकर है तो यही वाला बंदा जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा था ना, अ पर्सन हु इज सेइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हिमसेल्फ, यस सेइंग द सेकंड स्टेटमेंट। तो यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वही बंदा मतलब यही मैन इज डिलीवरिंग द सेकंड स्टेटमेंट एज वेल। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको वहां पे दो चीजें आप कर सकते हो, या तो एंड एडेड लिख दो या फिर एंड करके पीछे वाले स्टेटमेंट को भी उसी पहले वाले स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आप यू कैन डू दैट। सी मैंने यहाँ पे एंड डाल दिया है, एंड से उसको कनेक्ट कर रहा हूं। अब एंड से कनेक्ट करने के बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हो, जब यहाँ पे ये रूल पढ़ रहे थे ना, इफ देयर इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था आई वी। अगर जो आई आता है तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपको इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर ऑफ डायरेक्ट स्पीच।
तो यहाँ पे स्पीकर हमने किसको बनाया था, द मैन को। तो आई को जो चेंज करना है ना अकॉर्डिंग टू द मैन करना पड़ेगा। अब आई मैन है, एक ही है, तो आई का बन जाएगा ही। हमने क्या पुट ऑन किया, ही। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है, आई होप इट पासिस क्विकली, सिंपल प्रेजेंट टेंस है माय डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस वन। ये टेंस आपका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कन्वर्ट कर दो उसको किसमें, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस यहाँ पे सिंपल पास्ट आई होप का हो गया ही होप्ड। अब दैट कंडीशन तो पुट ऑन करनी पड़ेगी ना, कनेक्टर तो डालना पड़ेगा। तो आपको कनेक्टर के तौर पे मैंने आपको बोला था क्या ऐड करना है, दैट। सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है। अब पार्ट 1 के उस लिस्ट के अंदर आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा, पहले ही प्रकार का है। उसमें कनेक्टर था हमारा दैट, राइट, वी हैव पुट दैट ओवर देयर। नाउ आफ्टर पुटिंग दैट यू नीड टू कन्वर्ट दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू अ सिंपल पास्ट। तो इट पासिस का हो गया इट पास्ट क्विकली। यहां पे ये मेरा कन्वर्टेशन और कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल थियरी। टुडे or the day after tomorrow, maybe if you just try to brush up within these 2 days or 3 days, you will learn automatically all the rules and very easily। आप ये जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया है सारे रूल्स के साथ, डियर स्टूडेंट, आपको उसको 1, 2, 3 या 4 दिन तक कंटिन्यूअसली उसको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, यस रीड करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर इसको एक बार फिट कर दो आप। Then you will be master of converting direct speeches into indirect one. Thank you. Good morning dear student, we have recently completed our grammar topic entitled as direct and indirect narration. Now after learning all the basic rules and the changes where we need to do or where we not to, right, ये सारी चीजें हमने सीख ली है। Now we are today practicing for the same topic and this is for class 9th grammar, English medium, direct and indirect. This is a practice paragraph and I have also given some of the practices over here to do it yourself, जो आपको खुद करनी होगी। And after completion of this exercise you have to submit me, इसको आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। Now this is for class 9th English medium C, right, remember this one। अब यहाँ पे हमने जबकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऑल बेसिक रूल्स को हमने जो पढ़ लिया है, उसके बाद हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिया है फ्रॉम योर टैक्स ओनली, राइट। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा चेंजेस मैंने करके आपको आई वुड लाइक टू ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं जो हमने बेसिक रूल पढ़े हैं उस रूल के हिसाब से। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना है यहाँ पे। पहला जो हमारा पैराग्राफ है जो कि प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस पर्पस है, आप ध्यान से उसको सुनना, समझना और इसको अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। देखो, टॉमी सेड मतलब देयर इज नो लिसनर, पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में फिट कर रखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज टॉमी सेड मतलब इन दिस स्टेटमेंट वी आर नॉट गिवन एनी लिसनर, दैट यहाँ पे लिसनर नहीं दिया हुआ है। टॉमी सेड into inverted comma, what a waste when you are through with a book you just throw it away। I guess यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। उसी में वो आगे बोलता है
in the same sentence he just move on. Our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. ये पूरा का पूरा यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है लेकर यहां तक. This whole sentence is spoken by only Tommy. टॉमी के जरिए बोला गया स्टेटमेंट है. जब भी आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना शुरू करो तो आप पहले एक बात ध्यान से पढ़ के सोच या समझ लेना. यू नीड टू थिंक कि हु इज स्पीकर एंड हु इज लिसनर, उसकी जेंडर क्या है वो भी आइडेंटिफाई कर लेना ताकि आपको लेटर ऑन सम चेंजेस बेस्ड ऑन प्रोनाउन, राइट, तो उसमें इट विल हेल्प यू. ये सारी चीजें उसमें आपको हेल्प करेगा. तो यहाँ पे टॉमी स्पीकर है और ही इज अ बॉय. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है. लेट्स स्टार्ट टू कन्वर्ट इट. लेट्स स्टार्ट टू कन्वर्ट इट. देखते हैं. चलो अकॉर्डिंग टू रूल आपको जाना है. ठीक है, रूल के हिसाब से ही जाना है. हमने बोला था कि जब भी कोई अगर लिसनर ना दिया हो तो सेड का सेड ही रहना है. ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिख देते. टॉमी तो लिख दिया. स्पीकर और लिसनर में कोई चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द रूल. सेड वही का वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, अब इट इज वेरी असर्टिव स्टेटमेंट. अगर सिंपल है, डिक्लेयर कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे आपको कनेक्टर के तौर पे क्या डालना है, दैट. तो टॉमी सेड दैट. अब यहाँ पे देखो व्हाट अ वेस्ट, ये तो सिंपल सा है तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, इट वॉज अ वेस्ट. इसको सिंपल बना दो. व्हाट अ वेस्ट की जगह पे आप क्या कर दोगे, इट वॉज अ वेस्ट. तो मैंने वही यहां पे किया. ठीक है, उसने आगे कहा है यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो दोनों कॉमा करके दिया है ना आपको, ये वाला, उसमें वो यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ से वो गेस कर रहा है. तो वो वाला हमारे यहाँ पे इस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट होगा. ही गेस. यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे जो आई था वो अब यहाँ पे ही बना. लेकिन कैसे बना ही, सी क्यों नहीं बना, इट क्यों नहीं बना, because this is a first person pronoun and first person pronoun, my dear student, keep in your mind that it is only converted according to the speaker of a statement. और जो speaker of a statement मेरा है वो तो टॉमी है और टॉमी एक लड़का है. So I have put he over here. अब since it is a simple present tense, convert it into a simple past. तो he guessed, ed लगा दिया, past बन गया. अब past बन के सिंपल ही स्टेटमेंट तो है. when you are through this book, when you are through this book means when you have read it. आप एक बार उसको कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद ये तो डिक्लेरेटिव सिंपल असर्टिव स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमारा जो कनेक्टर बनता है वो है दैट. तो दैट मैंने डाल दिया. अब बाकी का फॉर्मेशन देखो. when you दिस इज सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन में यू को यू ही बोला जाता है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं करना है हमें. अब यहाँ पे यू आर था ना, आर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पे बन जाएगा वो यू वर बन जाएगा. क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, वर. थ्रू विथ अ बुक, इसमें कोई चेंज नहीं करना है. विथ अ बुक कॉमा कॉमा डाल दिया. आप वहां पे एन एडेड भी लिख सकते हो लेकिन प्लीज कीप इट सिंपल एज मच एज यू कैन, राइट. जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो. डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मत बनाइएगा टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स फॉर मी. सी विथ अ बुक कॉमा. फिर आगे बोला है यू जस्ट थ्रो इट अवे. तो यहाँ पे यू जस्ट थ्रो इट अवे इसका मतलब तो क्या है, सिंपल है, असर्टिव है. तो उसने कहा कि यू जस्ट थ्रो इट इज अ सिंपल प्रेजेंट तो यहाँ पे बनेगा थ्रू. पास्ट बन जाएगा इट अवे. ये कंप्लीट हो गया. यहां तक का हमारा ये आगे वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ठीक है ना. उससे आगे अभी भी वो बोल रहा है ना, our television screen must have had a millions of book on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अभी भी वो बोल रहा है तो वही बंदा बोल रहा है ना आगे. तो हमने क्या किया है यहाँ पे, he further said,
या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ही एडेड दैट, राइट। आप क्या लिख सकते हो, एडेड दैट, क्योंकि वो ऐड ही कर रहा है अपने पहले स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। ही इज हिमसेल्फ एडिंग सम मोर स्टेटमेंट्स इनटू इट, तो यहां पे हम एडेड भी लिख सकते हैं, या फिर ही फर्दर से, वो फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, अवर टेलीविजन है, अवर वर्ड लिखा है, मैंने आपको बोला था जब हम चेंजेस पढ़ रहे थे तब, कि जब अवर तो उसका मतलब उस टाइम पे हमारा होता है, लेकिन कोई तीसरा बंदा सुन के जब चौथे को बताएगा तब वो देयर बन जाएगा, उनके लिए बन जाएगा, जो हमारा था वो बनेगा उनके लिए। तो यहाँ पे हमने अवर का चेंज कर दिया है देयर के साथ। देयर टेलीविजन, देयर मतलब किनके, टॉमी और मार्गी के, ठीक है। देयर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड, टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज ही है। एंड इट्स, यहाँ पे इट्स का मतलब इट इज है, तो अब यहां पे हमें करना पड़ेगा इट वॉज गुड फॉर प्लेंटी मोर, गुड फॉर प्लेंटी मोर। और उसी में आगे बोल रहा है ना वो कि आई वुडंट थ्रो इट, इसीलिए तो मैं थ्रो नहीं कर रहा, इसीलिए मतलब कारण बता रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर दो सो ही, यहाँ पे आई की जगह पे फिर से पहले वाला प्रोनाउन है तो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब टॉमी के लिए यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही वुडंट थ्रो। मैंने आपको बोला था चेंजेस पढ़ते समय कि जब वुड हो तो उसके रिवर्स चेंज नहीं होते, विल का वुड हो सकता है लेकिन वुड का वापिस विल नहीं होगा, तो वुडंट का वुडंट ही रखेंगे, थ्रो का थ्रो, ईट अवे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। नाउ दूसरा एक स्टेटमेंट दिया है जो कि मार्गी बोल रही है। मार्गी क्या बोल रही है, सेड मार्गी, क्या कहा, सेम विथ माइन, सेम विथ माइन, ऐसा स्टेटमेंट मार्गी बोल रही है। तो यहाँ पे हमने, मार्गी ने क्या कहा, सेम विथ माइन, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, जो यहाँ पे टॉमी के साथ हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ टॉमी, द सेम थिंग हैपन्स विथ मार्गी एज वेल। तो यहाँ पे मार्गी इज अननोइंगली एग्रीइंग और नोइंगली अग्रीइंग द स्टेटमेंट विथ टॉमी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्गी अग्रीड, क्योंकि ये अग्रीड होता है ना उस चीज से, ठीक है, हम बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो मार्गी अग्रीड एंड सेड, अग्रीड करने के बाद क्या बोलती है, सेड दैट, कनेक्टर डालना है, सिंपल स्टेटमेंट है तो दैट ही डालेंगे। इट वॉज द सेम विथ, अब माइन है तो माइन का बन जाएगा हर्ट्स। यहाँ पे माइन किसके लिए यूज हुआ है, मार्गी के लिए, और मार्गी यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे हमें पुट ऑन करना पड़ेगा विथ हर या फिर हर्ट्स। आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल explanation that I have converted direct narration into indirect. Now according to this, on the basis of these kind of changes, you have to do it yourself. इन paragraphs को आपको खुद करना पड़ेगा। See, I am just explaining some of the points of this paragraph that आपको उसको समझना है। जैसे यहाँ पे she said, where did you find it? अब यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो said है ना रिपोर्टिंग वर्ब, वहां पे आप क्या पुट ऑन करोगे, asked, ठीक है, इंक्वायर्ड या फिर क्वेश्चन, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको WH से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप रूल को याद करिए डियर स्टूडेंट। रूल में हमने बोला था कि इफ माय रिपोर्टिंग स्टेटमेंट start with WH question, then the connector will be that statement itself or WH word। तो यहाँ पे WH word ही हमें पुट ऑन करना है। तो she asked where, अब ये सिंपल पास्ट है, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन फॉर्मेशन को हमें अफर्मेटिव में सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है और सिंपल पास्ट का बना देना है परफेक्ट पास्ट। ये चेंजेस आपको करना है। फिर इन माई हाउस, इन द एटिक, ही पॉइंटेड आउट, मतलब कौन, कोई दूसरा सुनने वाला है जिसको हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि टॉमी सुन रहा है, तो टॉमी क्या कर रहा है, पॉइंटेड कर रहा है, पॉइंट बता रहा है इस तरह से, तो आप वहीं पे
लिख सकते हो राइट कि भाई टॉमी या फिर ही पॉइंटेड आउट दैट, क्या पॉइंटेड आउट कर रहा है, इन हिज हाउस एंड एडेड क्योंकि कॉमा है और आगे स्टेटमेंट चालू है तो एंड एडेड इन द एटिक ऑफ द हाउस। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे के अंदर देखो, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ सेड द मार्गी, मार्गी ने बोला कि भाई कोई बंदा इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, तो मार्गी सेड दैट अ मैन वाजंट स्मार्ट इनफ। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करो। try to solve these all the questions by putting the rule on one hand and try to solve it out, and if you find any trouble then let me know through the message. ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।